Okay, so we will talk about polymorphism in Python, and let's go to the screen. आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होगी। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? कैन यू सी द स्क्रीन? ओके, जिन लोगों ने अब तक कंप्लीट नहीं किया है वो पुराने सेशन से वीडियो से यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग से उससे कंप्लीट कर लेंगे डे 29 तक। जिन लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है या फिर जिन लोगों ने अब तक कंप्लीट नहीं किया है। ओके, और अब आपके लिए मैं शॉर्ट्स भी लेके आ गया हूँ जिसमें आप लोग छोटे वीडियो से सीख सकते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को। जो पॉसिबल हो पाता है मैं उसके लिए शॉर्ट्स वीडियो भी बना दूंगा। ओके, so guys who have joined new here, or if you have not completed yet, you can watch the recording until day 29 on the YouTube itself. Okay, and you can also learn now from YouTube video shorts. So moving on today class, आज हम समझते पाइथन में पॉलीमॉर्फिज्म को। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? सबसे पहले इसका जो मतलब होता है उस ये होता है कि ये बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में हो सकता है। ओके, और इसमें जो मेथड फंक्शन या ऑपरेटर्स जो होता है मल्टीपल चीज़ों के साथ इसका यूज किया जा सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ही है कि आप इस चीज़ का यूज मल्टीपल चीज़ों के साथ कर सकते हो, चाहे वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो जिनका टाइप अलग अलग हो, मल्टीपल क्लासेस हो या कुछ भी हो। ओके, so you can use polymorphism, the word polymorphism meaning many forms. Okay, it means it's refer to the ability of the method, function or operators. So you can use a single thing with many type of thing, like two different type of object and two different type of classes, etc. Okay, so we are looking for an example. So we are taking example of len function, the length function inside our polymorphism. Okay, so we have already seen this, that the len function, the length function is written in Python. So for string it return the length, how many character inside a string. Okay, so I am taking an example here. I am taking a variable x and some character inside a string, and when I calculate the length of the x, it means length of this string, it should return the length of this string, which is 6 right now for these characters, this string. Next thing, when I take a tuple here, okay, so here you can see here is a tuple of fruits. So when I calculate len with same tuple, same function len function with the tuple, so tuple is different data type and string is different data type, but len function can be used at both places. Len return string, length of string for the string, and it return the count number, item number. Okay, here is 3 items total, so len function will return 3 inside these fruits because the tuple contain 3 items. And inside a dictionary it return key value pairs. Okay, so this dictionary have 2 key value pairs, so it will return dictionary. When I print length of this dictionary, it will return 2. So I'm running the program and you can check the result. For the first one it returns 6 for the all 6 characters inside this string. For the second one it returns 3 for this tuple because this tuple contain 3 fruits.
and for this dictionary it returns two because this dictionary contains two key value pair. ओके, सो हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे len फंक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले भी देखा हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि हमने एक स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में असाइन किया और उस वेरिएबल की लेंथ निकालने की कोशिश की। तो लेंथ निकालने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला वो इस वेरिएबल का कितने कैरेक्टर हैं इस वेरिएबल के अंदर वो मिला। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर एक टपल लिया, टपल में 3 फ्रूट्स हैं और जब इसकी लेंथ निकाली हमने तो इसमें क्या हुआ, इसमें इसने टपल्स में कितने आइटम है उसका लेंथ निकाल के दिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम len फंक्शन को एक स्ट्रिंग के साथ यूज कर रहे हैं और इसी len फंक्शन को हम एक टपल के साथ यूज कर रहे हैं। इसका मतलब हमने दो अलग टाइप के ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज किया, ये स्ट्रिंग और ये टपल। और अब यहाँ पर हम तीसरा जो यूज कर रहे हैं len फंक्शन को, वो एक डिक्शनरी है। तो ये तीसरा ऑब्जेक्ट है, ये अलग है बाकी दोनों से। ओके, तो यहाँ पर इसको यूज करने के बाद इसमें की वैल्यू पेयर को रिटर्न करता है और जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तब फर्स्ट में हमें दिखता है कि इसकी लेंथ जो 6 है इस स्ट्रिंग की वो रिटर्न हो गई यहाँ पर। उसके बाद इस टप्पल की जो लेंथ है इसमें जो आइटम है 3 है वो 3 रिटर्न हो गए और लास्ट में डिक्शनरी में 2 की वैल्यू पेयर हैं तो वो 2 रिटर्न हो गए। बट इसका मीनिंग क्या हुआ ओवरऑल? ओके, तो हमने len फंक्शन का एग्जांपल लिया, यहाँ पर हमने समझा कि डेटा टाइप यहाँ पे डिफरेंट है और डिफरेंट डेटा टाइप होने के बाद भी हम उसी फंक्शन का यूज करके अलग अलग काम कर सकते हैं। ओके, सो सेम फंक्शन हमारे को अलग अलग चीजें रिटर्न करके दे रहा है। So here is the same function len function is used with a string, a tuple and a dictionary, but it returns a different value, different type of result with each. But we can use the same function len, the length function with all of this, and this is called polymorphism because we are using with many other things, not only one. It can use with 3 different method, function or operators or anything else. Okay, so I hope this is clear to you. यहाँ तक आपको क्लियर है तो ऐसी टाइप कर दो, टाइप ऐसी क्लियर अंटिल हियर। ओके, so moving on, next thing we will use in this inheritance with polymorphism. So if you already seen inheritance class, if you already attended inheritance class type 1, if you not attended type 2, अगर आपने इनहेरिटेंस पढ़ लिया उसका क्लास अटेंड कर लिया तो एक टाइप कर दो, नहीं तो 2 टाइप कर दो। ओके, मूव ऑन करते हैं। इसमें इनहेरिटेंस हमने समझा था कल के सेशन में, लास्ट सेशन में हमारे, आई थिंक 2 सेशन पहले हमने समझा था इनहेरिटेंस के बारे में। उसमें चीजें ये थी कि कैसे एक पेरेंट क्लास बना के चाइल्ड क्लास को इनहेरिट कर सकते हो आप। इसमें इसी को यूज करके और हम पॉलीमॉर्फिज्म का भी यूज करेंगे कि देखेंगे अलग अलग चीजों में कैसे काम करता है। तो इनहेरिटेंस क्लास पॉलीमॉर्फिज्म। सो यहाँ पे व्हीकल नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्लास बनाया हमने व्हीकल नाम से। व्हीकल नाम के क्लास में हमने 2 मेथड डिफाइन किए, एक इनिट मेथड जो कि ऑलरेडी व्हीकल नाम के क्लास में इसको असाइन करने के काम में आ रहा है, इन प्रॉपर्टीज को असाइन कर रहा है ये। ओके, और दूसरा हमने एक और मेथड डिफाइन किया मूव के नाम से। यहाँ पे हमने एक सिंगल कीवर्ड रिटर्न किया, सिंगल स्ट्रिंग मूव। ओके, इसके बाद ये हमारा पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास जो नॉर्मल क्लास होता है वही होता है। ओके,
और यहाँ पर हमने 3 चाइल्ड क्लासें बनाई है। सबसे पहली क्लास बनाई व्हीकल से कार, जो कि व्हीकल को एक्सटेंड करता है, मतलब व्हीकल के सारे प्रॉपर्टीज और मेथड इसमें ऑलरेडी एक्सेस हो जाते हैं। यहाँ पे हमने पास स्टेटमेंट का यूज किया है। पास स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसमें जो चीजें हैं वो हमारे लिए काफी है। ओके, हमने जस्ट क्लास बना दी। एक और क्लास बनाई हमने बोट के नाम से, और बोट में हमने व्हीकल को एक्सटेंड किया और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया। इस मेथड को ओवरराइड किया हमने। देखो यहाँ पर मूव नाम से जो मेथड है पेरेंट क्लास के अंदर, उसको हमने वापस डिफाइन किया। यहाँ पर चाइल्ड क्लास में वापस मेथड डिफाइन करने का मतलब आप इसको ओवरराइड कर रहे हो। अब ये वाला मेथड आपके लिए वैलिड नहीं है इस चाइल्ड क्लास में, ये वाला मेथड ओवरराइड कर देगा इसको, और ये वाला मेथड वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग, हमने प्लेन नाम के क्लास में मूव मेथड डिफाइन किया, जिसमें रिटर्न कर रहा है फ्लाई। वापस से हमने ओवरराइड किया है सेम मेथड को जो पेरेंट क्लास में है। हमने तीनों क्लासेस का एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ऑब्जेक्ट में हमसे पूछा जा रहा है दो चीजें, ब्रांड और मॉडल। तो क्योंकि इन तीनों क्लासेस ने व्हीकल को इनहेरिट किया है, तो इसकी वजह से हमें ब्रांड और मॉडल ऑटोमेटिक देखने को मिल गए सब में। यहाँ पे हमने सबके कार के ब्रांड और मॉडल, एक बोट का ब्रांड और मॉडल, और एक प्लेन का ब्रांड और मॉडल, ये तीनों चीजें टाइप कर ली और एक एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए तीनों अलग अलग क्लासेस से। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने एक इसका एक टपल बनाया। टपल बनाने के बाद एक व्हीकल लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर लूप में। तो व्हीकल यानी कि वी इन ये पूरा टपल जो है सारे ऑब्जेक्ट का, इनको बनाने के बाद हमने प्रिंट किया जहाँ पे व्हीकल के ब्रांड, व्हीकल के मॉडल, और व्हीकल में मूव नाम से जो मेथड हो रहा है, फर्स्ट में ये मूव कॉल होगा, यहाँ पे पास हो गया है तो इसी को इनहेरिट करेगा। सेकंड में इनहेरिट किया लेकिन इसने ओवरराइट कर दिया तो इसको कॉल करेगा, और थर्ड में इसको कॉल करेगा। तो हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू कि हमने मूव नाम का जो मेथड है वो तीनों में अलग अलग है। ओके, मेथड का नाम सेम है मूव, बट इन तीनों क्लासेस में मेथड अलग अलग है, चाहे वो पेरेंट क्लास में हो चाहे वो चाइल्ड क्लास में हो। ओके, मेथड अलग अलग है सेम नेम से। ओके, बट ये अलग अलग चीजों को कॉल करेगा। तो क्योंकि हमने एक ही मेथड बनाया यहाँ पर एक ही नेम से और वो अलग अलग पे काम कर रहा है, तो उससे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो यहाँ पे ये तीनों बार यही मेथड काउंट होगा इसी व्हीकल पे, इसी यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म का यूज किया गया है। ठीक है, इसको प्रिंट करके हम चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया है प्रिंट, इस प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू पहले वाला आ, कार का नाम आ गया जो कि मूव होता है, सेकंड बोट का नाम आ गया जो कि सेल यानी कि तैरता है, और थर्ड में यहाँ पर एक प्लेन का नाम आ गया जो कि फ्लाई यानी कि उड़ता है। ओके, सो इस टाइप से हमने सिंगल मेथड का यूज करके अलग अलग काम किए, अलग अलग क्लासेस में काम किया, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलेंगे। सो वी कैन सी हेयर वी हैव using practical in polymorphism. So inheritance class, we are inheriting class we have seen in our last session. So in this vehicle class, we have created a parent class vehicle and defining a method, as well defining a second method move. So the init method is assigning both the values you are passing inside in this properties. And the second method move method we will define. So we are defining here three child classes from this vehicle parent class. So defining car, extending this vehicle class. If you are unable to understand what I am talking about inheriting and this all, we have already cleared two sessions ago. So you can watch the inheritance class to understand better. Okay. So this with the boat class, we are overwriting the method because move method is already defined inside the vehicle class. So we are overriding the method here. So the parent class method is no more valid for this class.
So boat class defining its own move method and plain class defining its own move method. So all the methods is written some string inside it. We are creating a car, boat and plane class, uh, one object for each, and passing the brand and model for each object. So we are taking all these three objects and creating a tuple inside a for loop. Okay. And for accessing each tuple with a variable, we are printing the brand, the model, both the properties inside vehicle, and this move method is polymorphism, uh, accessing the benefit of polymorphism, because move method is defined also inside the vehicle class as well as inside boat class and move plane class. Okay. So we are calling this single move method on this particular variable for each object because of this polymorphism. Okay. And this is what called polymorphism, because accessing three different type of or some different type of object for particular one method. Okay. This is what I talked about here. So it defined in many form and method, function, operators. Okay. In the classes, object or classes. So I'm going to run the program and you can see the result. The first one, car, printed for this brand and model, and the move method printed here, move, because inside parent we can see the it return move. And the second one for this boat, it overwriting move method, and it's showing here the brand, the model, and this move method saying sail. It means it's sail on the water. And the third one is brand and model, again it's fly, so it's fly in the air. So I hope this is clear, that what is polymorphism here. Okay. We can use it with many object, with a single function, single method, in many different type of object. So I hope this is clear to you. If all clear, type AC. अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो AC टाइप कर दो. ओके. सो आज का सेशन शॉर्ट था क्योंकि हमें एक ही टॉपिक को समझना था और ये हमें समझ में आ गया पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है. अब Q&A सेशन का टाइम है. अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो, और आपको लीव करना है तो लीव कर सकते हो. So today is the class is short because of this short topic, and now this is the Q&A time. If you want to ask any question, if you have, you can ask, or if you want to leave, you can. So if you don't have any question, you can also type no question, and I can end the class. Okay, guys, I'm ending the class. If you still have a question, or I have not answered yet, so you can ask in the community. Thanks for joining. Good night.